ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ ਤੇ ਆਦਾਬ ਉਹਨਾਂ तमाम ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ 102.7 FM ਤੇ ਯੁਵਵਾਣੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਵਿਪਨ ਸੁਮਨ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਕੈਂਪਸ। ਦੋਸਤੋ ਕੈਂਪਸ ਦੀ ਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਆਣ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ DAV ਕਾਲਜ ਵਿਖੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹਾਉਤਸਵ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ DAV ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਕਵਿਤਾ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇਤੂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਓ ਫਿਰ ਆਨੰਦ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦਾ। ਮਿਰਗਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕਸਤੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੋਮਬੱਤੀ ਤੇ ਕਦੇ ਕੜਾਹੇ ਰਿੱਝਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸੂਰਜ ਕਦੇ ਵੀ ਕਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੂਰਜ ਉਹ ਕਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਭਿੱਜਣਾ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹਾਉਤਸਵ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ 에ਅਰ ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ I would really like to invite our esteemed judges, Sir Imtiaz ji on the stage, Madam Komal Soni, Assistant Professor in Department of Commerce, and Madam Gurjeet Kaur, Assistant Professor in Department of Punjabi. Please give them a huge round of applause. So with this, I would like to announce the topics given first. Judges, please note. The topics given are My Dream India, expressing the personal vision of self-reliant India, Atmanirbhar Bharat. The New She, a futuristic view of the empowered Indian girl. Make in India, Skill India, opportunities given to the next generation. Youth icons and role models in cultural, sports and academics. Indian values and ethos, revisiting villages, the roots for the nation building. And India Ahead, youth in scientific research and industrial development. And I will repeat that the list is not exhaustive. So ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਮੰਚ ਤੇ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਾਂਗੀ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੈਂਟ ਮਿਸਟਰ ਸੌਰਵ, ਜੋ ਕਿ ਪੋਇਟਰੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਲੀਜ਼ ਗਿਵ them a huge round of applause. फर्स्ट परफॉर्मर वैसे थोड़े नर्वस होंगे ने, सो गिव देम अ ह्यूज राउंड ऑफ अपलॉज अगेन। इस कविता का विषय है, वो जो शब्द है, वो जो लय है, असल में उस पर कविताएं नहीं लिखी जा सकती। दुनिया की किसी भी कलम में इतनी ताकत नहीं है कि वो माँ पे कविताएं लिख सके। असल में मैं तो बड़ा छोटा कलमकार हूँ, मैं माँ पे क्या कविता लिखूँगा। मैंने कविता सिर्फ ये लिखी है कि जब माँ हमारे पास होती है तब शायद उसके होने का एहसास नहीं होता, जब माँ नहीं होती तब ज़िंदगी क्या होती है, मैं बस यही बताना चाहता हूँ। इसी पर एक शुरुआत में एक छोटी सी कहानी है, ध्यान से सुनिएगा। एक बार एक जंगल में एक संगीतकार मिधन बजाता था। मिधन एक ढोलक की तरह एक वाद्य को कहते हैं, और जब वो मिधन बजाता तो एक बकरी का बच्चा वहाँ पर रोज़ आकर खड़ा हो जाता। ऐसे ही कुछ हफ्ते गुजर गए, कुछ महीने गुजर गए। एक दिन उस संगीतकार ने उस बकरी के बच्चे से पूछा कि यार, क्या तुम्हें मेरी सुर, मेरी ताल, मेरी लय बहुत अच्छी लगती है जो तुम रोज़ यहाँ पर चले आते हो? वो बोला, मैं नहीं जानता तुम क्या बजाते हो, ना ही तो मुझे सुर की समझ, ना ही तो मुझे ताल की समझ, और ना ही तो मुझे लय की समझ। मुझे तो बस इतना पता है कि जो इस ढोलक पे, जो इस मिधन पे चमड़ा चढ़ा है, वो मेरी माँ के बदन से आया है, और जब इस पर थाप पड़ती है तब मैं यहाँ पर आकर खड़ा हो जाता हूँ। मेरी कविता माँ के ना रहने पे एक भीतर से पड़ी थाप की कविता है जो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। अगर आपके आंसू बाहर की दुनिया की यात्रा करना चाहें तो उन्हें रोकिएगा मत। जैसा मैं कहता हूँ, माँ नहीं होती तब ज़िंदगी क्या होती है। इस पर एक शुरुआत में एक छोटा सा शेर अर्ज़ करना चाहूँगा कि किसी के हिस्से में मकान आया, किसी के हिस्से में दुका आई, मैं सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। तब कहता हूँ कि कल जब मैं उठकर काम पर जा रहा था तो अचानक लगा कि कोई रोक लेगा मुझे। कल जब मैं उठकर काम पर जा रहा था तो अचानक लगा कि कोई रोक लेगा मुझे और कहेगा, खड़ा खड़ा दूध मत पी, हजम नहीं होगा। और कहेगा, खड़ा खड़ा दूध मत पी, हजम नहीं होगा, 2 घड़ी सांस ले ले। अरे इतनी ठंड और कोट भूल गया, इसे भी अपने पास ले ले। मन में सोचा
मां रसोई से बोली होगी जिसके हाथों में सना आटा होगा। अगली पंक्ति एक खालीपन से जुड़े हैं, जुड़े तो मुझे बताएं। मन में सोचा मां रसोई से बोली होगी जिसके हाथों में सना आटा होगा, पर पलट के देखा तो क्या मालूम कि वहां सिर्फ सन्नाटा होगा। पलट के देखा तो क्या मालूम कि वहां सिर्फ सन्नाटा होगा। अरे अब हवाएं ही तो बात करती हैं मुझसे। जब कोई नहीं होता तब अंतरिक्ष बात करता है, निर्वात बात करता है, वैक्यूम बात करता है। तब कहता हूं कि अरे अब हवाएं ही तो बात करती हैं मुझसे। जब जाऊंगा किसी खास काम से तो कोई कहेगा दही शक्कर खा ले बेटा, अच्छा शगुन होता है। कोई कहेगा गुड़ खा ले बेटा, अच्छा शगुन होता है। पर मन इसी बात के लिए तो रोता है कि सब कुछ है माँ, सब कुछ। आपने अपने बचपन में देखा होगा कि माएँ हमारे को टोकती हैं, यहाँ मत जा, वहाँ मत जा, ये मत कर, वो मत कर। तो हम आज़ाद होना चाहते हैं, पर आज़ादी की कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। अगर मैंने कम शब्दों में सही बात कह दी हो तो मुझे इसका एहसास ज़रूर कराइएगा कि सब कुछ है माँ, जिस आज़ादी के लिए मैं तुझसे सारी उम्र लड़ता रहा, आज वो सारी आज़ादी मेरे पास है। फिर भी ना जाने क्यों दिल की धड़कन उदास है। कहता था ना तुझसे मैं वही करूँगा जो मेरे जी में आएगा, और आज मैं वही सब कुछ करता हूँ जो मेरे जी में आता है। बात ये नहीं है कि मैं जो चाहूँ कर लूँ, मुझे कोई रोकने वाला नहीं है। बात है तो सिर्फ इतनी सी कि जब सुबह देर से उठूँ ना तो कोई टोकने वाला नहीं। बात है तो सिर्फ इतनी सी कि जब सुबह देर से उठूँ ना तो कोई टोकने वाला नहीं है। रात को देर से लौटूँ तो कौन नाराज़ होगा भला, कौन कहेगा बार बार कि अब कहाँ चला। आप ही की ज़िंदगी से कुछ दृश्य उधार लेता हूँ और आप ही को सौंपता हूँ कि रात को देर से लौटूँ तो कौन नाराज़ होगा भला, कौन कहेगा बार बार कि अब कहाँ चला। दोस्तों के साथ घूमने के उलाने कौन देगा, मेरे वो तमाम झूठे बहाने कौन देगा। सच कहा है कि गम की चोटें ज़ख्मों में फौलाद से ज़्यादा क्या होगी, और माँ की दौलत दुनिया में औलाद से ज़्यादा क्या होगी। तब कहता हूँ कि रात को देर से लौटूँ तो कौन नाराज़ होगा भला, कौन कहेगा बार बार कि अब कहाँ चला। दोस्तों के साथ घूमने के उलाने कौन देगा, मेरे वो तमाम झूठे बहाने कौन देगा। कौन कहेगा ये लड़का क्यों नहीं सुधरता है, हाय राम ये लड़का क्यों नहीं सुधरता है। पैसे कहाँ खर्च हो जाते हैं तेरे, क्यों नहीं बताता है। सारा सारा दिन मुझे सताता है, रात को देर से आता है। खाना गर्म करने के लिए तेरे लिए जागती रहूं, खिलाने के लिए तेरे पीछे भागती रहूं, बहाती रहूं आंसू तेरे लिए। कभी कुछ सोचा है मेरे लिए। खैर मेरा तो क्या होना है और क्या हुआ है, इस बुढ़िया का तो क्या होना है और क्या हुआ है। तू खुश रह लेना यही दुआ है, और आज तमाम खुशियां खुशियां तेरे पास। गम ये नहीं है कि कोई इन खुशियों को बांटने वाला होता, पर कोई तो होता जो गलतियों पर डांटने वाला होता। और अंतिम पंक्तियां कहता हूँ कि तू होती ना तो हाथ फेरती, कभी सर पर हल्के से बाम लगाती, सुबह आवाज़ें दे देकर उठाती, दिवाली के दिन टीका लगाती और रुपए देती और कहती बड़ों के पाँव छूना आशीर्वाद मिलेगा। कपड़े मत फाड़ना, अगला कपड़ा अगली दिवाली को सिलेगा। बहन को सताता तो तू चांटे मारती, बीमार पड़ता तो तू रो रो के नज़रें उतारती, परीक्षा से आते ही खाना खिलाती, पिता की डांट का डर दिखाती, और फिर पिता की डांट से भी तू ही बचाती। इसे नौकरी मिल जाए, ये तरक्की करे, दुआओं में हाथ उठाती, पर तरक्की के लिए वतन छोड़ देगा। ये बात सुनते ही दरवाजे के पीछे से चुपके चुपके से आंसू बहाती। सब कुछ है माँ, सब कुछ। आज दुनिया की हर तरक्की की रेखा तेरे बेटों को छू कर जाती है, पर माँ हमें तेरी बहुत याद आती, हमें तेरी बहुत याद आती, हमें तेरी बहुत याद आती। धन्यवाद। सब ठोकरें सब बलाएं छू कर चली जाती हैं, ज़रूर मेरी माँ मेरे हक में दुआएं पढ़ती होगी। एक बार ज़ोरदार तालियों से इनकी इस पेशकारी का स्वागत करें। मैडम ये सौरभ ना मुझे सुबह से कह रहा था मैम मेरी फ़र्स्ट परफॉर्मेंस मत रखना, एंड आई वुड रियली लाइक टू अप्रिशिएट कि इस प्रोग्राम का इससे बेहतर आगाज़ नहीं हो सकता। थैंक यू सो मच फॉर द वंडरफुल परफॉर्मेंस। और इसके साथ ही आई वुड लाइक टू इन्वाइट आवर नेक्स्ट परफॉर्मर मिस शिवानी पॉल for poetry. Please welcome on stage Miss Shivani with a huge round of applause. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਭ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਪੌਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ।
ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ ਮਾਵਾਂ ਤੇ ਧੀਆਂ, ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਹੈ। I've chosen this poem under the purview of the topic given, the new she, the futuristic view of the empowered Indian girl। ਹਰ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਮਾਵਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰ ਆਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਰੁਸ਼ਨਾਵੇ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਸਿਆਣੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਲੁਕ ਲੁਕ ਕੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਸਿਆਣੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਲੁਕ ਲੁਕ ਕੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਧੁੱਖ ਧੁੱਖ ਕੇ ਜਿਉਂਦੀਆਂ, ਝੁਕ ਝੁਕ ਕੇ ਤੁਰਦੀਆਂ, ਨਾ ਉੱਚਾ ਬੋਲਦੀਆਂ ਨਾ ਉੱਚਾ ਹੱਸਦੀਆਂ, ਨਾ ਉੱਚਾ ਬੋਲਦੀਆਂ ਨਾ ਉੱਚਾ ਹੱਸਦੀਆਂ, ਕੁੜੀਆਂ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀਆਂ, ਬਸ ਧੂਏ ਦੇ ਭੱਜ ਰੋਂਦੀਆਂ ਤੇ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਓਲੇ ਘੁੱਗ ਵਸਦੀਆਂ। ਕੁੜੀਆਂ ਤਾਂ ਸ਼ਰਮ ਹਿਆ ਦੀਆਂ ਪੁਤਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਿਰ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖਦੀਆਂ, ਅੱਖ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦੀਆਂ। ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਤਾਂ ਨਿਰੀਆਂ ਗਊਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿੱਲੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਦੇਵੋ ਵੱਜੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਤਾਂ ਨਿਰੀਆਂ ਗਊਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿੱਲੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਦੇਵੋ ਵੱਜੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਬੇਜ਼ੁਬਾਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਆਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਵੀ ਬੋਲ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਾ ਆਇਆ। ਉਸ ਦਾ ਹਰ ਵਾਕ ਮੇਰੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਰ ਬਣ ਕੇ ਉਸਰ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਕਦਮ ਕਦਮ ਤੇ ਦੀਵਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਕਰੀ, ਕਿ ਕਦਮ ਕਦਮ ਤੇ ਦੀਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਕਰੀ, ਆਪਣੀਆਂ ਉਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੰਜਰਿਆਂ ਕੋਲ ਗਹਿਣੇ ਨਾ ਧਰੀ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਬੁਲੰਦ ਇੰਨਾ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰੀ ਕਿ ਹਰ ਹਨੇਰਾ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤਰਬਕ ਜਾਵੇ, ਹਰ ਹਨੇਰਾ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤਰਬਕ ਜਾਵੇ, ਹਰ ਦੀਵਾਰ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਠਿਠਕ ਜਾਵੇ ਤੇ ਹਰ ਜ਼ੰਜੀਰ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੜਕ ਜਾਵੇ। ਤੂੰ ਮਾਣ ਨਾਲ ਜੀਈ, ਮਾਣ ਨਾਲ ਮਰੀ, ਦੀਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਾ ਕਰੀ। ਮੇਰੀ ਧੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਹੇਗੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸੋਹਣਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਮੁਕਤੀ ਅਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਭਰਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਮਾਵਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰ ਆਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਰੁਸ਼ਨਾਵੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਯੁੱਗ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪਲਟਦੇ ਨੇ, ਹਾਂ ਯੁੱਗ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪਲਟਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। Thank you, Shivani, for the wonderful performance. And with this, I would like to invite on stage Miss Kavita Sharma. Miss Kavita Sharma, give her a huge round of applause. नमस्कार, मेरा नाम कविता शर्मा। मैं आपके समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है हमारी कोख जाई। पढ़ी लिखी तो क्या हुआ, हो तो तुम एक लड़की, कि पढ़ी लिखी तो क्या हुआ, हो तो तुम एक लड़की, जॉब कर ली तो क्या हुआ, हो तो तुम एक लड़की। रात का अंधेरा है तुम्हारे लिए खतरनाक, तुमसे ही ऊंची नीची होती खानदान की नाक। मत भूलो कि मत भूलो, ना समाज बदला है ना ही हम लोग, बेटियां आज भी हैं बाप के कंधों पर बोझ। आज भी रात को बाहर निकलने से पहले पड़ता है हमें सोचना, बाप के चेहरे पर उड़ती है हवाई और माँ का 100 बार पूछना। बेटा जवान तो बाप का सहारा, बेटी जवान तो बाप बेचारा। लड़की ज्यादा पढ़ लिख ली तो अच्छा रिश्ता कहाँ से आएगा, बेटा जितना पढ़ ले दहेज से उतना ही घर भर जाएगा। कहीं कभी कोई लड़की छिड़ी तो दोषी लड़की ही होगी, जरूर उसके कपड़े तंग होंगे या रात में बाहर निकली होगी। उसके कपड़े नहीं तुम्हारी मानसिकता तंग है, अपने अधिकारों के खातिर हमें लड़नी ये जंग है। आशाओं की किरण दिखी है, सवेरा होना बाकी है, आशाओं की किरण दिखी है, सवेरा होना बाकी है। नई सुबह की एक किरण अंधेरा चीरने को काफ़ी है, नई सुबह की एक किरण अंधेरा चीरने को काफ़ी है। बहुत हुआ सम्मान, मेरी इज्जत मैंने खुद है कमाई, बहुत हुआ सम्मान, मेरी इज्जत मैंने खुद है कमाई। बराबरी का हक तुम लोग हमें क्या दोगे, पूरी कायनात है हमारी कोख जाई, पूरी कायनात है हमारी कोख जाई। धन्यवाद। कविता, आपकी कविता के लिए शुक्रिया। इस व्यू पे मैं कुछ कहना चाहूँगी कि हालात ज़माने के संभलने नहीं देते।
हालात ज़माने के संभलने नहीं देते, हम साथ में चलते हैं तो चलने नहीं देते। नफ़रत की हवाओं को ज़माने से मिटा दो, उल्फत के चिरागों को जो जलने नहीं देते। With this, I would like to invite our next performer, Mr. Gaurav. Please give a huge round of applause for Gaurav. ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੋਹ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ। ਮੇਰੇ ਖਾਬਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਉਹ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਖਾਬਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਉਹ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਦੇ ਨਾ ਪੁੱਛਦੇ ਜਾਤ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਚਾਹੇ ਦਿਨ ਚਾਹੇ ਰਾਤ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮੋਹ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖਾਬਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਉਹ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਖਾਬਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਉਹ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਈਮਾਨ, ਜਿੱਥੇ ਵਸੇ ਸਭ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ 'ਚ ਜਾਨ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਈਮਾਨ, ਜਿੱਥੇ ਵਸੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ 'ਚ ਸਭ ਦੀ ਜਾਨ, ਜਿੱਥੇ ਦੁੱਖ ਹੋਣ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ, ਜਿੱਥੇ ਦੁੱਖ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੇ ਖੋ। ਮੇਰੇ ਖਾਬਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਹੈ ਉਹ, ਮੇਰੇ ਖਾਬਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਹੈ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਫਸਲ ਬੀਜ ਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਫਸਲ ਬੀਜ ਕੇ ਤਰੱਕੀ ਉਗਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦੀ ਹਰ ਨਸਲ ਬੇਈਮਾਨੀ 'ਚੋਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ 'ਚ ਉਗਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੁਝ ਲੋਹ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖਾਬਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਉਹ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਖਾਬਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਉਹ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਦਰਜਾ ਤੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਦਰਜਾ ਤੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਮਿਸਾਲ 'ਚ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਵੇ, ਮਿਸਾਲ 'ਚ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣਿਆਂ ਲਈ ਖੋਹ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖਾਬਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਉਹ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਖਾਬਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਉਹ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹੱਥੀਂ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਕਦਰ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਹੱਥੀਂ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਕਦਰ ਹੋਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਬਰ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਰੱਬ ਵੇਖਣ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕੀ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥੇ ਟੇਕਣ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕੀ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥੇ ਟੇਕਣ, ਜਿੱਥੇ ਕਦੇ ਨਾ ਭੁੱਲਣ ਮਹੀਨਾ ਪੋ। ਮੇਰੇ ਖਾਬਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਹੈ ਉਹ, ਮੇਰੇ ਖਾਬਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਹੈ ਉਹ। ਧੰਨਵਾਦ। मेरे खाबां दा भारत कविता दे लई एक बार फिर तो जोरदार तालियां। ते इस दे नाल ही मेरा अगला सद्दा है मंच ते भागीरथी। मिस भागीरथी, प्लीज वेलकम हर ऑन स्टेज। हम कहते हैं कि भारत बटा नहीं है, हम कहते हैं भारत बटा नहीं है, पर सच्चाई तो ये है भारत हर जगह बटा हुआ है। मैं एक छोटी सी कविता पेश कर रही हूँ जो एक नौजवान को दर्शाती है। तो मैं पंडित जी का बेटा और वो काजी साहब की बेटी थी, निकाह उसका हो रहा था, आहूति मेरी मोहब्बत दे रही थी। मैं पंडित जी का बेटा और वो काजी साहब की बेटी थी, डोली उठ रही थी उसकी, जनाजा मेरा उठ रहा था। डोली उठ रही थी उसकी, जनाजा मेरा उठ रहा था। इश्क करना तो दो दिलों ने था, इश्क करना तो दो दिलों ने था। ये मज़हब मज़हब करने वाले कहाँ से आ गए, ये मज़हब मज़हब करने वाले कहाँ से आ गए। कोई समझा दें मज़हब मज़हब करने वालों को कि मज़हब भी पहले इश्क करना सिखाता है। मैं पंडित जी का बेटा और वो काजी साहब की बेटी थी। मैं पंडित जी का बेटा और वो काजी साहब की बेटी थी। मोहब्बत की बातें करते करते वो मुझे कुरान और मैं उसे गीता पढ़ाया करता था। आज वो गीता और मैं कुरान जानता हूँ, क्योंकि इश्क तो बस मोहब्बत करना जानता है। ये हिंदू मुसलमान नहीं, ये हिंदू मुसलमान नहीं। भारत को बांट तो दिया हमने हिंदू मुसलमान ने, भारत को बांट तो दिया हमने हिंदू मुसलमान ने, पर ये दिल को कैसे बांटें, पर ये दिल को कैसे बांटें। मेरी माँ के लाडले को तन्हा छोड़ वो अपने बाप की फर्माबरदार बेटी बन गई, और आज हम उसकी याद में एक भारत का नौजवान है। भारत बटा नहीं है, भारत बटा नहीं है हिंदू मुसलमान सिख ईसाई में। भारत तो देश है, भारत तो देश है राज्यों के संग का। लहराना है तिरंगा, लहराना है भारत का तिरंगा। हमें ऊंचाइयों पर, ये नौजवानों की लाशों पर नहीं। धन्यवाद। Thank you for the poem Bhagirathi. It touched a very sensitive subject and कविता में दिलों तक पहुंचने की सहजता होती है।
अगर ये कविता आपके दिल पर पहुंची, दिल तक पहुंची, तो एक बार फिर से उनका प्रोत्साहन करें जोरदार तालियों के साथ। इसके साथ ही मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी अखिल शर्मा फॉर पोइट्री। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਲੋ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤਾਂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਵਧੀਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੇਡੀਓ ਵਾਲੇ ਆਏ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਆਰਜੇ ਅਖਿਲ। ਦੇਖੋ ਸ਼ਾਇਰੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਸਟ ਮੈਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਲਿਖੇ ਨੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਮੈਡਮ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੰਝੂਆਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੰਝੂਆਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਦੋਸਤੀ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਏ ਤੇ ਕਦਰ ਕਰੋ, ਕਿਸਮਤ ਹਰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। वो कहते हैं ना कि कुछ ऐबों का होना भी लाजमी है साहब। इस दे नाल ही माहौल थोड़ा लाइट होंदा नज़र आ रहा है। तो इस तो बाद मैं मंच पे आमंत्रित करदी हाँ अगले परफॉर्मर मिस्टर रशनीत, जिहड़े कि पंजाबी च कविता पेश करेंगे। प्लीज़ वेलकम हिम ऑन स्टेज विद अ ह्यूज राउंड ऑफ अपलॉज एवरीवन। माँ ਸੰਪੂਰਨ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸ਼ਾਹਕਾਰ। ਮਾਂ ਸੰਪੂਰਨ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸ਼ਾਹਕਾਰ, ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਬੇਪਰਵਾਹ ਲਚਕ। ਮਾਂ ਵੈਰਾਗ ਦੀ ਉਹ ਡੂੰਘਾਈ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਕੀਰੀ ਚੁੱਪ ਦੇ ਭੇਤ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਅਮੀਰੀ ਇੱਕ ਨਿੱਘੀ ਜਿਹੀ ਸੋਚ ਲੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਵੈਰਾਗ ਦੀ ਉਹ ਡੂੰਘਾਈ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਕੀਰੀ ਚੁੱਪ ਦੇ ਭੇਤ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਅਮੀਰੀ ਇੱਕ ਨਿੱਘੀ ਜਿਹੀ ਸੋਚ ਲੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਠ ਹਾੜ ਦੀਆਂ ਧੁੱਪਾਂ 'ਚ ਉਹਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਹੇਠ ਤੁਰਨਾ, ਜਿਵੇਂ 100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਪਿੱਪਲ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੋਵੇ। ਜੇਠ ਹਾੜ ਦੀਆਂ ਧੁੱਪਾਂ 'ਚ ਉਹਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਹੇਠ ਤੁਰਨਾ, ਜਿਵੇਂ 100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਪਿੱਪਲ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੋਵੇ। ਮਾਂ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਸੂਖਮ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਹੀ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦਾ ਖਾਲਸ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਹ ਜਲਾਲ ਹੈ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਸਾਕਾਰ ਰੂਪ ਦਾ। ਮਾਂ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਸੂਖਮ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਹੀ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦਾ ਖਾਲਸ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਹ ਜਲਾਲ ਹੈ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਸਾਕਾਰ ਰੂਪ ਦਾ, ਜੋ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀ ਹਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੇ ਅਲਪ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀ ਹਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੇ ਅਲਪ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਦਾ ਹੈ। ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਸੁਰਤ 'ਚੋਂ ਉੱਠੀ ਅਰਦਾਸ, ਦੁਆਵਾਂ ਦੀ ਤਹਿ ਹੇਠ ਲੁਕੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਂ ਮੋਹ ਦੀ ਅਡੋਲ ਸ਼ਾਂਤੀ 'ਚੋਂ ਉੱਠਿਆ ਗੈਬੀ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜੋ ਮਹਿਤਾਬੀ ਨੂਰ ਵਰਗੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ। ਇਹ ਮਾਂ ਮੋਹ ਦੀ ਅਡੋਲ ਸ਼ਾਂਤੀ 'ਚੋਂ ਉੱਠਿਆ ਗੈਬੀ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜੋ ਮਹਿਤਾਬੀ ਨੂਰ ਵਰਗੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ। ਕਿੰਨਾ ਤਲਿਸਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਜੋ ਕਿਸਮਤਾਂ ਬੁਣਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਤਲਿਸਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਜੋ ਕਿਸਮਤਾਂ ਬੁਣਦੇ ਨੇ। ਕੁੱਲ ਤਕਦੀਰਾਂ ਦਾ ਮਰਕਜ਼ ਨੇ ਇਹ। ਕਿੰਨੀ ਕਲਾਤਮਕ ਹੈ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਕੁੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਲਣ ਵਾਲੀ ਮਾਂ, ਕਿੰਨੀ ਕਲਾਤਮਕ ਹੈ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਕੁੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਲਣ ਵਾਲੀ ਮਾਂ। इन्ने गंभीर सब्जैक्ट दे नाल इंसाफ करना बहुत मुश्किल होंदा है। तो जो कविता रशनीत ने पेश की, एक बार फिर तो उन्हों का जोरदार ताड़ियों के नाल स्वागत। कि अपने पैरां हेठां ही दफना दिंदी है, अपने पैरां हेठां ही दफना दिंदी है, वेले दी वाह सिर दा मुकुट उड़ा दिंदी है, ते उस सुजाखी मां नूं 100 सजदा जेड़ी अन्ने पुत दे नैणी सुरमा पा दिंदी है। ਅੱਜ बहुत बच्चों ने 2-3 स्टूडेंट्स ने माँ के उपर बोलिया तो सारे थोड़ा इमोशनल हो गए। बट इस दे नाल ही पोइट्री दे सारे पार्टिसिपेंट्स हिंदी पंजाबी वाले मुकम्मल हो गए ने। तो लास्ट ते आई वुड लाइक टू इनवाइट पीयूष ऑन स्टेज फॉर प्रेजेंटिंग पोइट्री इन इंग्लिश। प्लीज़ गिव हिम अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज एवरीवन। Day by day, what you choose, what you think and what you do is who you become. Day by day,
what you choose, what you think, and what you do is who you become. In the light of this statement, I'm going to recite a beautiful poem on the topic, Youth, have you earned your tomorrow? Youth, have you earned your tomorrow? Is anybody happier because you passed his way? Is anybody happier because you passed his way? Does anyone remember that you spoke to him today? This day is almost over. This day is almost over and its toiling time is through. Is there anyone to utter now a kindly word of you? Did you give a cheerful greeting to the friend who came along, or a curly sort of hoodie and then vanish in the throng? Were you selfish, pure and simple as you rushed along the way, or is someone mighty grateful for a deed you did today? Can you say tonight in parting with the day that's slipping fast? Can you say tonight in parting with the day that's slipping fast? Is a single heart rejoicing over what you did or said? Is a single heart rejoicing over what you did or said? Does a man whose hopes were fading now with courage look ahead? Did you waste the day or lose it? Was it well or sorely spent? Did you waste the day or lose it? Was it well or sorely spent? Or a curly sort of hoodie and then vanish in the throng? Or a curly sort of hoodie and then vanish in the throng? Do you think that God would say, do you think that God would say, you have earned one more tomorrow by the work you did today? You have earned one more tomorrow by the work you did today. At last, I'm going to conclude, and it's my personal experience, that people will forget what you think. People will forget what you think. People will forget what you did. But people will never forget how you made them feel. Thank you and have a nice day. Thank you, Piyush, for the wonderful performance. And with this, I would like to invite on stage Ashu Sharma. Please give him a huge round of applause. जिंदगी मिली थी उन्हें जीने के लिए, लेकिन खुद के लिए जी ना पाए। थे वो देश के जवान जो हर मुश्किल का डट के सामना कर दिखाए। मिले अगर एक मौका हम भी कुछ बनेंगे, मिले अगर एक मौका हम भी कुछ बनेंगे। आपकी जितनी औकात नहीं हमारी, लेकिन देश के लिए कुछ करेंगे। थैंक यू। मंच पे सबको बोलते हुए देखकर जो ऑडियंस में बैठते ना, उनके अंदर भावनाओं का एक गुबार पैदा होता है जो उन्हें मंच पर आने पर मजबूर कर देता है। सो आशु की इस परफॉर्मेंस के लिए ज़ोरदार तालियां। जो पोइट्री रेसिटेशन ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਨੇ ਜੀ ਸੌਰਵ। ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹਾਉਤਸਵ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਵਿਤਾ ਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਮੁਕਾਬਲੇ। ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਜਲੰਧਰ ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਇਹਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੀਏਵੀ ਕਾਲਜ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ। ਕਵਿਤਾ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਰਵ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ, ਜਲਦ ਹੀ ਅਗਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਵੇਗੀ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਤਦ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਯਾਨੀ ਵਿਪਨ ਸੁਮਨ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਨਮਸਕਾਰ। पेशकश मोहम्मद इम्तियाज़।